Hi guys, welcome to the TISNET podcast video. Today is the first podcast, and this podcast I'm doing with Umi Pandey. She is from Assam and she got selected for Guwahati campus. और कोर्स जो है वो सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ के लिए शी गॉट सेलेक्टेड. उमी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you so much for having me here. माय प्लेजर. ओके, सो कल रिजल्ट आया एंड व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट, what was the feeling? First of all, I was confused that क्या हुआ है ये. I was not sure that I could make it. Overall, मेरा दोनों एग्जाम्स ठीक ठाक ही था, मेरे एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही था, पर it was something unexpected. तो मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाई, उनको दिखाया कि is it right or not, have I selected or not, और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया. अच्छा, मतलब भरोसा नहीं हो रहा था, you were not यार मेरा हो ही गया. एक्चुअली मैंने इतना इसके लिए वो जो था फोकस नहीं किया था एट फर्स्ट. जब स्टार्टिंग में टीस्नेट का नोटिफिकेशन आया था, मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था फर्स्ट राउंड में. तो मेरे हिसाब से जो सेकंड राउंड था ओपीआई और एक्सटेम्पोर राउंड का जो था, वो मेरे हिसाब से ठीक था, पर फर्स्ट राउंड में मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था. तो एक हेसिटेशन थी, एक डाउट था कि मे बी I couldn't make it, but yeah, overall I was very happy. So for how many courses you had applied? Sir, I applied for only one course because I was the one not which you got selected for. Yeah. I was not confident enough. Okay. Since you were not confident enough, that is why you haven't applied for the other courses, because it is give the chance of to selecting 3 courses, right? Yeah, sir. I first of all I had interest in this field, and it was my first preference to be sure. Okay. And like I didn't think about it too much, and I just applied for one course itself. Okay. So why you have chosen your career into the public health, like social work? Is there any specific reason you have applied for this course, or anything, any story behind it? Yeah, sir, to be precise, when I was preparing for my 12th board exams, and after that I was preparing for NEET also, but I couldn't get enough marks on that field, so I couldn't secure a seat in any medical college that time. So yeah, I don't regret it that I couldn't make it, because I gave my best at that time. From that time, I had an interest in this public health sector, so I wanted to do something in this field. और इसीलिए मैंने टीस का यही प्रोग्राम चूज किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे और मुझे एक्सपोजर मिलेगा. I will get many chances to work with people and leave an impact in the society directly. What kind of exposure you are seeking and you think आपको मिलेगा? Yeah. So sir, if I talk about TIS Guwahati, I choose Guwahati campus itself as first because it was my priority. I belong to Northeast and I was born here, I was raised up here, and I think I should give something back to this area. And if we talk about the public health sector, it is very lagging behind. If we see the northeastern states, Assam is somehow developed comparatively other states. If we talk about Mizoram, Nagaland, there are many areas where public health facilities are very bad. I want to get involved in the system, infrastructure, and I want to help people to fight many diseases. I want to be a medium through which they can have a better life and a better health. Okay, great. Nice clarity. Okay. So थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं प्रिपरेशन को लेकर के, बट बिफोर दैट वांट टू नो योर लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. मतलब नाम किस कॉलेज से पढ़ा, एकेडमिक क्या था आपका, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो थोड़ा सा जस्ट टेल मी अबाउट दिस पार्ट. So my name is Umi Pandey. I belong to district in Assam, to be precise, Karbi Anglong, but currently I am studying in Nagaon, ADP College, and my subject is Bachelor of Science in Botany. So I belong to science background, and yeah, that's it about me, to be very short. Okay. When you got to know about the TISNET, कि ये एग्जाम लिखेंगे, I get this campus, I get Tata Institute of Social Science, और इसमें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, प्री प्लान था ये या किसी ने बताया आपको? नहीं, मुझे ऑब्वियसली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में पता था, बट मुझे
ये जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ऐसा करके कुछ फील्ड होता है, इस फील्ड के थ्रू आप कुछ कर सकते हैं। आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे अपने फ्रेंड से पता चला Okay. एंड दैट टाइम आई थॉट कि ये थोड़ा मिक्सचर है, डेवलपमेंटल बैकग्राउंड भी है थोड़ा सा, और इसमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, थोड़ी अपनी तरफ से डाल सकते हैं, पूरा टेक्निकल भी नहीं होता चीजें, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना पसंद करते हैं। तो आई वाज नॉट श्योर कि ये बैकग्राउंड भी कुछ होता होगा। आई got to know about Tata Institute and its courses through one of my friend, and I'm very grateful that I finally had that chance to enroll myself. Okay, great. So let's talk about little bit preparation part. So when you have started your preparation, and what do you think? क्या मैंने गलतियाँ की? What are the mistake you have done which one should not do? Yeah, sure, sir. Actually, as I said earlier, that I did my best for this preparation. Actually, the 10th February, I think, was the last date for TSNET form fill up, and that day itself, I enrolled for this form. After that, on 26th, there was exam, and I got in between 15 days to only prepare. I was mad that why did I why did I do the form fill up and I will not be able to give my best, एंड अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ जाएंगे, क्योंकि आप अगर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नहीं मतलब कर पाते हैं कम्पीट, तो आप पे बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, यू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। पर फिर मैंने आजकल जैसे कि यूट्यूब एक वरदान है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया प्रिपरेशन के बारे में TSNET, तो आई वाज लकी एनफ कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस मैनोवर एजुकेशन चैनल, एंड मैंने एक तरफ से सारी वीडियो देख डाली, मतलब वो चाहे जीके हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इट वाज हेल्पफुल एनफ आई वुड से। मैंने जितनी प्रिपरेशन की उतने में मैंने जितना किया उसके लिए मैं बिल्कुल ग्रेटफुल हूँ आपके चैनल के लिए, सारे टीचर्स जो थे। और मैं गलतियों की अगर बात करूँ तो एट फर्स्ट मैथ्स बहुत मॉडरेट लेवल का है TSNET में, मुझे और फोकस करना चाहिए था मैथ्स में। मेरा अभी जो सब्जेक्ट है, अभी करंट सब्जेक्ट बॉटनी है, एक डिस्टेंस हो गया था मैथ्स से, तो ऐसा था कि ये जो जनरल चीजें हैं मैं वो भी भूल रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे नहीं आ रहा था दिमाग में। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा और पहले मैंने इसके बारे में पता लगाया होता तो ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता, और मैथ्स और थोड़े से मार्क्स मेरे एनहेंस करता। जीके की बात करें तो जीके काफी इजी था मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं इतना करंट अफेयर्स मतलब मैं करंट अफेयर्स थोड़े से बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे इजी लगा। आपके लिए इजी होगा, बट बहुत लोगों के लिए लास्ट ईयर का जीके टफ था। जी सर, इस बार की बात करें तो सर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस देखे थे। मैनोवर एजुकेशन में आप लोगों ने बोला कि मूवी के अराउंड, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर अवार्ड हो गया, तो मैंने ये बेसिक चीजें ही पढ़ी थी। तो जीके मेरे हिसाब से ठीक था और इम्प्रूव हो सकता था। इंग्लिश भी मॉडरेट ही था मेरे लिए, रीजनिंग इजी था मैं बोलूंगी, पर मुझे लगता था मैथ्स में और थोड़ा फोकस करना चाहिए था, वो मेरे मार्क्स और ला सकता था। या मुझे इतना ही लगता है कि गलती हो गई। So जो biggest mistake or guilt which you have, that is nothing but थोड़ा जल्दी चालू कर लिया होता तो, थोड़ा जल्दी है सर, थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन चालू कर दिया होता तो टाइम कंज्यूमिंग है सर, ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेवल इतना हार्ड नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड टफ के बीच में है, लेकिन आपको टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे लगता था कि मैं और पहले से स्टार्ट कर सकती थी। Yeah, have you written any mock test? No sir, I enrolled one of your courses from Manova Education. There for second round I was having this personal interview. I had a mock test there, and which was very helpful for me. I haven't written such mock tests after that. I don't remember. But ideally, those who are watching this podcast, before you go for the actual examination, you should write couple of mock tests, because वो बहुत important है। I mean, in your case, obviously 15 days पहले आपने चालू किया, preparation करोगे, mock लिखोगे, तो in your case it is understood, ठीक है, but हाँ इतना late preparation तो obviously start नहीं करनी है।
and one should definitely go for the mock test. But luckily, you yes got sir. got into. I was not confident enough. मैं रिजल्ट भी चेक नहीं करने जा रही थी बिकॉज मुझे लग रहा था होगा ही नहीं इसमें ऑब्वियसली. बट मेरी सिस्टर जो है उसने मुझे फोर्स किया कि चेक कर लो एक बार रिजल्ट में भी आ भी सकता है. तो मैं शॉक थी उस टाइम पे पर हैप्पी भी थी एट द सेम टाइम. Okay, तो मैं लक fine. मानूंगी कि हो गया है इतने कम टाइम में वरना आपको और टाइम देने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए. Right. So luck is the factor here, but आपने मेहनत भी Yeah. की. Yes sir, ठीक है, yes. ठीक है. So इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपको जो आपका इंटरव्यू हुआ था पब्लिक हेल्थ को लेकर के? So if you remember, then you can share to the all the for all the viewers, those who are applying for the public health. Yes sir, definitely. At first इंटरव्यू सोच के मतलब सबको डर लग जाता होगा कि क्या सवाल पूछते होंगे. क्योंकि आजकल लोग बस यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू देखते हैं यूट्यूब पर सोचते हैं उस लेवल का हार्ड होगा. तो लोगों में काफी डर होता है कि इंटरव्यू किस तरह. और मेरे लिए इंटरव्यू इतना टफ नहीं था मैं बोलूंगी. क्योंकि मैं थोड़ी सी कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ. मैं पहले से प्रैक्टिस करती थी कम्युनिकेशन का. मुझे वो बातें जो मैं सोचती हूँ डिलीवर करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. बेसिक से सवाल पूछे गए मुझे कि मैंने इस फील्ड में रहते हुए पब्लिक हेल्थ को क्यों चूज किया एज माय डोमेन. मेरे स्टेट के बारे में पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ यहाँ पे जो सिटीज में रहती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ का रिवर पोल्यूशन के बारे में बताया और थोड़ा सा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सकता है इसके बारे में बात की. उसके बाद मुझे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में पूछा गया कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और क्या होते हैं की फैक्टर्स जो एक पब्लिक मतलब एक एरिया का जो पब्लिक का हेल्थ होता है कौन कौन फैक्टर्स थोड़े से मतलब कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इस टाइप के क्वेश्चंस थे. और आपका डेफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछा उन्होंने. डेफ रिलेटेड मैंने उसमें मेंशन किया था कि मुझे पोएट्री पसंद है. तो मैंने अपने फेवरेट पोएट का भी नाम वहाँ पे मेंशन किया था. तो मुझे उनके बारे में पूछा गया उनका बैकग्राउंड पूछा गया कि वो कहाँ से है कितनी कविताएं लिखी हैं क्या है उनके बारे में पूछा गया. करंट अफेयर्स मुझसे पूछा गया मुझे ऐसे पूछा गया करंट अफेयर्स कि आपने लास्ट करंट अफेयर क्या पढ़ा आज ऐसे करके पूछा गया. तो आई हैड अ चॉइस. मैंने बोला कि मैंने ये पढ़ा. तो वहाँ के जो थे पैनलिस्ट उन्होंने मुझे उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा. तो मैं मानूंगी कि ये थोड़ा सा मेरा एडवांटेज था उस टाइम पे. बाकी सारे बेसिक क्वेश्चंस थी इतना टफ नहीं था. बस आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों को एनहेंस करता है उस टाइम पे. आप अगर कोई पॉइंट अगर गलत भी बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो तो इट माइट बी अ पॉजिटिव फैक्टर. अगर अगर आप अंदर कॉन्फिडेंट होके कोई जवाब सही भी दे रहे हो तो मे बी वो लोग आपसे बार बार मतलब काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपको लगता है यही है. आपको समहाउ उनको कन्विंस करना होता है कि आपने ये जो कोर्स चूज किया है या यू कैन गिव योर बेस्ट इन इट. तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस. Have they allowed you to speak in Hindi also? Yeah, otherwise it was in English only. Sir, I spoke in English itself, but if I got to know from my friends, if you request them to talk in Hindi, so they can talk in both Hindi or English mixture. It's kind of mixture. Yeah. Okay, okay, great. So if you want to give any kind of a tips to upcoming year aspirant, those who are targeting for 2023 or 24, what kind of a tips you will give them? Yeah. First of all, I would say कि आप अगर सोच रहे हो टीसनेट के लिए अपियर होना है तो आप पहले से प्रिपेयर करें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हो. एक घंटे का टाइम मिलता है और एक घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इज अ डिफिकल्ट थिंग. एक प्लस पॉइंट है टीसनेट का कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें. तो बहुत सारे लोग बच जाते हैं लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसे लगा सकते कि एक तरह से सारे लगा के गए
अगर आप सारे एक तरफ से मार्क करके जा रहे हैं तो एक चांस होता है कि आपका सही हो सके क्वेश्चंस, पर ये एडवांटेज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे। पर मैं बोलूंगी कि मैथ्स आपका जो है, मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल का, मैथ्स क्वेश्चंस थोड़े से सेम ही रहते हैं। रीजनिंग और मैथ्स आपका बहुत हेल्प करेगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सही से। जीके के लिए आप करंट अफेयर्स को ऑब्वियसली रीड कीजिए। मतलब करंट अफेयर्स हो गया कि रिसेंटली जो 2-3 महीने में होके गया है उसका पूरा पढ़ डालिए अच्छे से, मतलब जस्ट रीड इट अबाउट इट। और बाकी क्वेश्चंस इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश मॉडरेट लेवल का ही होता है, फिर सिनोनिम्स एंटीनिम्स बहुत सारे आते हैं वहाँ पे, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इंटरव्यू के लिए यही बोलूंगी कि ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जिस फील्ड में है उसी के फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा और एक फ्रेंड है, उसने मे बी किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था पता नहीं, पर उसका बैकग्राउंड मैथ्स है तो उसको पूरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया इंटरव्यू पे, तो मे Okay. बी ये हो सकता है। अगर आप जिस बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं उस पर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, तब आप समहाउ उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए एप्लीकेबल हूँ, एलिजिबल हूँ इससे। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू, और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके लास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Great. So that's all, Umi, from my end. Let me summarize entire podcast. Very first, those who are targeting for the upcoming year TISNET examination, क्या क्या उनको करना है? सबसे पहले तो you should start your early preparation. नंबर वन, वो तो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन दिस ईयर कीप ऑन इंक्रीजिंग बेसिकली। इस साल भी कंपटीशन आपका 45-50,000 के आसपास जाएगा। सो लुकिंग एट द कंपटीशन एंड नंबर ऑफ सीट्स वो कम है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को बैलेंस करो एंड डू राइट द मॉक टेस्ट बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। जो लास्ट में आपने जो बोला कॉन्फिडेंट, जो इंटरव्यू में आपने हाउ दे आईड से कन्विंसिंग इज इक्वल टू हाउ कॉन्फिडेंट यू आर स्पीकिंग बेसिकली। आपका कॉन्फिडेंट बोलने का, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, वो इक्वल टू है कन्विंस करने को लेके पैनलिस्ट को। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू पार्ट ऑल्सो, और आप लैंग्वेज भी स्विच कर सकते हो, दैट इज देयर। बट हाँ, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होना है, बाकी बी पॉजिटिव और पॉजिटिव होके जाओ, डेफिनेटली स्टेज 2 भी अपना क्लियर होगा। दिस इज व्हाट द ओवरऑल summary of the podcast. So such kind of a podcast will keep on coming up. So be connected and share all these podcasts to असम में शेयर करो, आप पूरे इंडिया में जितने भी लोग टिस्नेट लिख रहे हैं, सो दैट दे शुड आल्सो वॉच दिस पॉडकास्ट। एंड जितने लोग पब्लिक हेल्थ के लिए जा रहे हैं गुवाहाटी कैंपस या जो भी कैंपस दूसरे कैंपस में, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। एंड सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट, अभी पॉडकास्ट सीरीज चालू ही हुई है तो it will keep on coming up. So Umi, once again thank you for sharing your experience, and once again best of luck for your career. Congratulations, you got selected Thank you for the so much, sir. Guwahati campus. Or Thank you so much for having me here and giving me this opportunity. I'm really grateful to Maneuver Education for your all guidance. you're welcome, and all the best. Thank you so much.